Hello students. Today we will discuss the first poem of 12th class, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Let's brief summary of the poem. In each and every line, the poet tries to explain the qualities of a happy person. According to him, simplicity, honesty, and control over desires are strong weapons. It seems that Henry Wotton is inspired by the religious book, the Bhagavad Gita. When he talks about man of action, freedom of thought, soul, and action. Consequently, a happy person always faith in God and remains calm and quiet. He keeps good friends and books, hopes and fears, and free from all foundations. तो आइए अब इस पोएम का हिंदी में अर्थ जानने का प्रयास करते हैं. How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. अर्थात how happy is he born or taught, वह व्यक्ति कितना खुशहाल है जो जन्म से या शिक्षा से ये सीख लेता है that serveth not another's will, कि दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करनी, कार्य नहीं करना है. Whose armor is his honest thought, जिसके ईमानदारी वाले विचार ही उसका कवच है. And simple truth his utmost skill, और सरल हृदय की जो सच्चाई है उसकी श्रेष्ठतम योग्यता है. The next stanza, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. अर्थात जिसकी तीव्र इच्छा उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात जो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है. Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्माएं भली भांति जानती हैं कि उसका शरीर मृत्यु के लिए बना है. Untied unto the world with care, जो इस संसार से बिना किसी चिंताओं से मुक्त रहता है. और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, जो बड़े लोगों की प्रशंसा और छोटे लोगों की आलोचना या निंदा की चिंता नहीं करता है, वह आदमी खुशहाल रहता है. In the third stanza, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. अर्थात who hath his life from rumors freed, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है. अर्थात अफवाहें उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं दे सकती हैं. Whose conscience is his strong retreat, जिसकी आत्म चेतना ही उसका शरण स्थल होता है. Whose state can neither flatterers feed, जिसकी स्थिति को कोई चापलूस बढ़ा नहीं सकता है. अर्थात चापलूसी करके कोई भी अपना कार्य सिद्ध उससे नहीं करवा सकता है. Nor ruin make oppressors great, और ना ही उसका कोई विरोधी उसका दमन करके फायदा उठा सकता है या महान बन सकता है. In the next stanza, who envies none, whom chance doth rage,
nor wise who never understood. How deepest wounds are given with praise, no rules of state but rules of good. Who envies none, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता. Whom chance doth raise, चाहे वो संयोग से बड़ा आदमी बन गया हो, nor wise, चाहे वो किसी बुरे कार्य करने से बड़ा बन गया हो. Who never understood, जो ये भली भांति जानता है. How deepest wounds are given with praise, कि प्रशंसा कितने गहरे जख्म देती है. अर्थात प्रशंसा करने वालों से दूर रहना है. नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राज्य के नियमों को नहीं अपितु सदाचार के नियमों का पालन करता है. वो अपने दिल से जो भी अंतरात्मा की आवाज निकल के आती है उसका पालन करता है. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. अर्थात जो ईश्वर की सुबह और शाम उपासना करता रहता है, more of his grace than gifts to lend, और बदले में अनुकंपा चाहता है, ना कि धन दौलत, किसी भी प्रकार की बंगला गाड़ी धन दौलत. Who entertains the harmless day, entertains means मनोरंजन में व्यतीत करता है. हार्मलेस मीन्स लाभ के दिनों को, जो लाभ के दिनों को व्यतीत करता है विद वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ और अच्छी अच्छी किताबों के साथ. नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. अर्थात दिस मैन, यह आदमी, कौन सा व्यक्ति? वो व्यक्ति जो खुशहाल है, जिसके अंदर जो ऊपर ये लाइनें बताई गई हैं, जो ये गुण रखता है. कौन से गुण? वह व्यक्ति जो जन्म से या शिक्षा से ये सीख ले कि दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना है, जिसका ईमानदारी वाले विचार ही उसका कवच होते हैं, साधारण सत्यता ही उसकी कार्यकुशलता होती है, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, जिसकी आत्माएं भली भांति जानती हैं कि उसका शरीर मृत्यु के लिए बना है, जो इस संसार से बिना किसी चिंता के बंधा रहता है और बड़े लोगों की प्रशंसा और छोटे लोगों की आलोचना की चिंता नहीं करता, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, जिसकी आत्म चेतना ही उसका शरण स्थल है, जिसकी दशा को कोई चापलूस बढ़ा नहीं सकता और ना ही कोई विरोधी उसका दमन करके महान बन सकता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, चाहे संयोग से वो बड़ा बन गया हो, चाहे वो बुरे कार्य करके बड़ा बना हो, जो ये भली भांति जानता है कि प्रशंसा बहुत गहरे जख्म देती है. वह राज्य के नियमों को नहीं सदाचार के नियमों का पालन करता है, जो ईश्वर की देरी से या जल्दी से प्रार्थना करता है, अर्थात सुबह शाम उपासना करता है, बदले में अनुकंपा चाहता है, ना कि सांसारिक वस्तुओं को, जो अपने अच्छे दिनों को अच्छे दोस्तों और किताबों के साथ व्यतीत करता है. दिस मैन, ये आदमी, फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, तमाम दास्ता के बंधन से मुक्त होता है, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होता है. ऑफ होप टू राइज, फियर टू फॉल, उसे उठने की आशा रहती है और गिरने का भय रहता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का स्वामी है. दो नॉट ऑफ लैंड्स,
भले ही उसके पास जमीन जायदाद धन दौलत बंगला गाड़ी कुछ भी ना दिखाई दे, एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, अर्थात उसके पास सांसारिक वस्तुएं नहीं हैं लेकिन संतोषी रूपी धन उसके पास है, वो इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है, सबसे खुशहाल व्यक्ति होता है। अर्थात इस पोयम में कवि ने खुशहाल व्यक्ति के गुणों के विषय में बताने का प्रयास किया है। आशा है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पोयम नेक्स्ट वीडियो के साथ